Now, today we will start with the concept of appeal. Now, first of all, you need to know that the term appeal has nowhere been defined in CPC. So, how would you define the term appeal? See, under Black's Law Dictionary, while construing the concept of appeal in its most original and natural sense, Black's Law Dictionary explains it as that it is a complaint to a superior court for an injustice done or error committed by an inferior court, whose judgment or decision the court above is called upon to correct or reverse. It is the removal of a cause from a court of inferior jurisdiction to one of superior jurisdiction for the purpose of obtaining a review and retrial. ये definition दी गई है. In other words, appeal can be defined as that an appeal is a proceeding where a higher forum considers the decision of a lower forum on questions of fact and law having regard to the jurisdiction. It may confirm, reverse, or modify the decision or remand the matter back to the lower court for fresh decision in compliance with its direction. These things can happen in appeal. Now you need to know that appeal is a very special kind of right. Whenever somebody asks you that what kind of right is an appeal, then you should always say that appeal is a substantive right. Alright, appeal is a substantive right. It means it is a right which is granted by the legislature itself. If statutorily the right of appeal has not been granted to you, then you don't have a right to appeal. Alright, right to appeal is not an inherent or natural right. You should keep that in mind all the time. So how would you write it? You will always say that right of appeal is statutory and procedural in nature. आप दोनों चीज़ें लिखिएगा. अगर ऑप्शंस में मान लीजिए प्रीलिम्स में हैं आप और वहाँ पे सिर्फ वर्ड जो है स्टैट्यूटरी राइट और बोथ का नहीं है, तो आप स्टैट्यूटरी राइट को चूज़ करेंगे. लेकिन जब भी आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि आप आंसर लिख रहे हो या किसी को बता रहे हो, then you should be clear about it that right to appeal is both statutory and procedural in nature. Statutory भी है, procedural भी है. अब इसका प्राइमरी फोकस जो जजेज हैं वो स्टैट्यूटरी पे रखते हैं. वो इसलिए रखते हैं कि अगर राइट टू अपील लेजिस्लेचर ने आपको ग्रांट नहीं किया तो आपके पास राइट टू अपील अवेलेबल ही नहीं है. आप सुपीरियर फोरम में जा भी नहीं सकते. देखिए, आपको एक केस से बताता हूँ. जैसे केस है अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये. बस इसका बस मेन क्रक्स जानी है, आपको केस लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज़ वेल सेटल्ड बाय सेवरल डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट that the right of appeal is a creature of statute and there is no reason why the legislature, while granting the right, can impose conditions for the exercise of such right so long as the conditions are not so onerous as to amount to unreasonable restriction, rendering the right almost illusory. So Supreme Court is also recognizing that right of an appeal is actually a creature of statute. ये statute का creation होता है, ठीक है, statute का creation होता है. अब यूजुअली आप सोचेंगे कि अच्छा सूट का भी राइट ग्रांट करना चाहिए या नहीं. नहीं, there is a basic distinction between the right to go to the civil court and the right of an appeal. दोनों में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? देखिए, राइट टू गो टू द सिविल कोर्ट इज अ नेचुरल एंड इनहेरेंट राइट. कोर्ट्स एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं कि आप उनके पास जाएं, ठीक है, तो नेचुरल और इनहेरेंट राइट है. लेकिन राइट टू गो टू एन अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट. वो अगर ग्रांट नहीं किया लेजिस्लेचर ने तो आप नहीं जा सकते अपील पे, ठीक है. और एज फार एज राइट टू गो टू सिविल कोर्ट इज कंसर्न, इट इज अ नेचुरल राइट, ठीक है. नेचुरल राइट या इनहेरेंट राइट, ये सब में इनहेरेंट होता है. तो मैं आप जब भी सिविल कोर्ट जाना चाहें तो हम सीधे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सूट इज नॉट बार्ड बाय सम लॉ. सूट किसी लॉ से बार नहीं होना चाहिए. लेकिन लेजिस्लेचर को कहीं लिखना नहीं पड़ता कि ये सूट आप ले जा सकते हैं, कि ये ले जा सकते हैं, और अगर उस लिस्ट में फॉल नहीं किया तो हम सूट ले ही नहीं जा सकते. ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट क्योंकि ये नेचुरल और इनहेरेंट राइट है सबके अंदर, तो लेजिस्लेचर बस इतना बताता है कि कौन से सूट आप नहीं ले जा सकते. तो जब तक आपका सूट उस
कैटेगरी में नहीं फॉल करता जो लेजिस्लेचर बार करता है, तब तक आप हर वो सूट ले जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ नेचुरल एंड इनहेरेंट राइट। लेकिन अपील के कंटेक्स्ट में क्या होता है, अगर लेजिस्लेचर ने नहीं लिखा कि आपके पास राइट टू अपील है या यू कैन अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, तो आपके पास राइट टू अपील फिर नहीं है, ठीक है। तो राइट टू अपील फिर आपके पास अवेलेबल होती ही नहीं है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ, इट इज अ क्रीचर ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। राइट टू अपील इनहेरेंट नहीं होता। अपील के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, अपील इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। ये सूट का कंटिन्यूएशन ही माना जाता है, ठीक है। अगर एक बार अपील एडमिट हो गई तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। थोड़े जनरल प्रिंसिपल्स पहले बता दूं अपील को लेके, उसके बाद हम लोग अपील के प्रोविजंस देखेंगे। अब जैसे आपको अगर कभी अपील पे आंसर लिखना हो, तो देर इज अ वेरी गुड केस ऑफ गरिकापति वेरैया वर्सेस एन सुबैया चौधरी, decided on 1st of February 1957. And here the Honorable Supreme Court said, and it was giving you a sort of conceptual guidelines relating to right of appeal. There the Supreme Court said that first, that the legal pursuit of a remedy, suit, appeal and second appeal are really but steps in a series of proceedings, all connected by an intrinsic unity and are to be regarded as one legal proceeding. तो अगर आप सूट, अपील या सेकंड अपील पे जा रहे हैं तो उनको पर्पस ऑफ लॉ के लिए एक ही प्रोसीडिंग माना जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। सेकेंडली, द राइट ऑफ अपील इज नॉट अ मियर मैटर ऑफ प्रोसीजर बट इट इज अ सब्सटैंटिव राइट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ क्रीचर ऑफ स्टैट्यूट। थर्ड इज, institution of the suit carries with it the implication that all rights of appeal then in force are preserved to the parties thereto till the rest of the career of the suit, ठीक। Fourth is that the right of appeal is a vested right and such a right to enter the superior court accrues to the litigant and exists as on and from the date the list, मतलब list का मतलब litigation होता है, as on the date the list commences, and although it may be actually exercised when the adverse judgment is pronounced, such right is to be governed by the law prevailing at the date of the institution of the suit or proceeding and not by the law that prevails at the date of its decision or at the date of filing of appeal. इससे क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या समझा रहा है। अब देखिए, राइट टू अपील जो है लेजिस्लेचर ग्रांट करता है, तो लेजिस्लेचर ले भी तो सकता है ना। अब मान लीजिए आपने आज सूट फाइल किया, आज आपके पास अपील, आज आपके पास आप सूट फाइल कर रहे हैं और आपके पास राइट टू अपील भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए डिसीजन मेरे खिलाफ आता है देन आई हैव अ राइट टू अपील, आज है। बट लेट अस सपोज सूट आपका डिसाइड हुआ 3-4 साल बाद, और इन द मीन टाइम इन 3-4 सालों में क्या हो गया कि लेजिस्लेचर ने एक नया एक्ट पास किया जिसने आपका राइट टू अपील ले लिया, ठीक है। हाल ही के 3-4 सालों के बीच में उसने आपका राइट टू अपील ले लिया। तो आपका राइट टू अपील कहाँ से डिटरमाइन होगा, आपका राइट टू अपील उस डेट से डिटरमाइन होगा जिस डेट आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है। तो अगर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट पे राइट टू अपील आपके पास अवेलेबल था, देन इट डज नॉट मैटर दैट बाय सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन द लेजिस्लेचर हैज रिवोक्ड द राइट ऑफ अपील, ठीक है। Fifth point is that once the right of appeal is given, it becomes a vested right. इसी को सुप्रीम कोर्ट समझाता है और कहता है कि this vested right of appeal can be taken away only by subsequent enactment if it so provides expressly or by necessary intendment and not otherwise. तो क्योंकि अपील एक वेस्टेड राइट है तो ये लिया ही इसलिए जा सकता है बाय अ सब्सिक्वेंट एनैक्टमेंट। अगर ये राइट रिवोक करना है देन इट कैन ओनली बी रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट एनैक्टमेंट, ठीक है। और वो एनैक्टमेंट एक्सप्रेस होना चाहिए, जनरली प्रेफर्ड है, या नेसेसरी इंटेंडमेंट होना चाहिए उस एनैक्टमेंट के अंदर कि राइट ऑफ अपील इज बीइंग टेकन अवे। और अगर ऐसा इंटेंडमेंट या एक्सप्रेस मेंशन नहीं है तो ये माना जाएगा राइट टू अपील इज स्टिल सबसिस्टिंग। अब एसेंशियल ऑफ अपील्स क्या होते हैं, देखिए एसेंशियल ऑफ अपील्स ये होते हैं कि कोर्ट की एक डिक्री होगी, ठीक है, लोअर कोर्ट की एक डिक्री होगी, एक अग्रीड पर्सन होगा, एंड दैट अग्रीड पर्सन नीड नॉट नेसेसरली बी द पार्टी टू द ओरिजिनल प्रोसीडिंग, एंड फाइनली देयर वुड बी अ रिव्यूइंग बॉडी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनिंग सच अपील्स, मतलब एक हायर फोरम होगा जो लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करेगा, ठीक है। अब एक सिचुएशन अराइज करती है कि ये जो अपील और रिवीजन है इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है। सो इन द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
In the case of Hari Shankar versus Rao Girdhari Lal Chaudhary, decided on 5th September 1961, Supreme Court talked about the distinction between an appeal and revision. Supreme Court said that the distinction between an appeal and a revision is a real one. A right to appeal carries with it a right of rehearing on law as well as facts, unless the statute conferring the right of appeal limits the rehearing in some way, as we find has been done in second appeals under Code of Civil Procedure. कोड जो सेकंड अपील होती है जो सेक्शन 100 में होती है उसमें कुछ लिमिटेशन है, रीहियरिंग ऑन फैक्ट्स पे नहीं अलाउ होता और आप एविडेंस री इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं उसमें. Supreme Court continues and said that the power to hear a revision is generally given to the superior court so that it may satisfy itself that a particular case has been decided according to law. अब देखिए अपील में क्या हो रहा है, रीहियरिंग एज ऑन फैक्ट एज वेल एज ऑन लॉ. बट रिवीजन में क्या देखता है सुपीरियर कोर्ट, रिवीजन में बस इतना ही सेटिस्फाई करता है कि जो जजमेंट दिया गया वो लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है या नहीं. सो अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी the high court's power are limited to see whether in a case decided there has been an assumption of jurisdiction where none existed or refusal of jurisdiction where it did, or there has been a material irregularity or illegality in exercise of that jurisdiction. The right there is confined to jurisdiction and jurisdiction alone. In other acts, the power is not so limited, and the High Court is enabled to call for record of the case to satisfy itself that the decision there is according to law and pass such order in relation to the case as it thinks fit. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा है कि अपील में रीहियरिंग होती है लॉ और फैक्ट में भी, ठीक है, अनलेस द लेजिस्लेचर इटसेल्फ हैज limited the right of hearing in some way, as in the case of second appeal. But as far as revision is concerned, revision is confined to the hearing on the question of jurisdiction and jurisdiction alone. That is the primary difference between them. अब सवाल उठता है कि कौन अपील कर सकता है, who can appeal. तो देखिए ऑर्डिनरी रूल ये है कि a party to the suit adversely affected by the decree or his representative in interest can file an appeal. ये ordinary rule है. But in certain circumstances, a person who is not a party to a decree or order may, with the permission of the court, prefer an appeal from such decree or order if he is either bound by the order or decree or is aggrieved by it or is prejudicially affected by it. ये है सिचुएशन जहाँ पे एक स्ट्रेंजर भी अपील फाइल कर सकता है. क्या कंडीशंस हैं? पहला, ही शुड बी बाउंड बाय द डिक्री और ऑर्डर. सेकेंड, और ये मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए, दैट वुड सफाइस. सेकेंड, ही शुड बी एग्रीड बाय इट. और थर्ड, द डिक्री और ऑर्डर प्रेजुडिशियली अफेक्ट्स हिज इंटरेस्ट. ठीक है, ये तीन कंडीशन है जहाँ पे एक स्ट्रेंजर टू द सूट कैन अपील अगेंस्ट द डिक्री. इन सम वे और द अदर डिक्री शुड अफेक्ट हिम, ऐसा ही होना चाहिए, वरना वो नहीं कर सकता अपील फाइल. ठीक है, क्योंकि जनरल रूल यही है, द पार्टी एग्रीड बाय द डिक्री कैन फाइल द अपील. अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेंजर का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है या नहीं, या वो अग्रीड पर्सन है या नहीं? आपको ये देखना होगा कि जो डिक्री या ऑर्डर है क्या वो उस पर्सन के इंटरेस्ट, चाहे पेक्यूनरी हो चाहे उसके अलावा हो, क्या वो अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर आंसर इज येस, इट इज़ प्रीजुडिशियली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, बी इट पेक्यूनरी और अदरवाइज, देन he is considered as an agreed person and he can file appeal. Let me summarize some of the general principles on this matter. First is, a party to the suit who is aggrieved or adversely affected by the decree, or if such party is dead, his legal representatives can file an appeal. Second, a person claiming under a party to the suit or a transferee of the interest of such party who, so far as interest is concerned, is bound by the decree, then provided his name is entered on the record of the suit, then he can also file an appeal. Third is, a guardian ad litem appointed by the court in a suit by or against a minor is competent to file an appeal. And fourth is, any other person with leave of the court, if he is adversely affected by the decree, is competent to file an appeal. ठीक है, तो ये लोग हैं वो आर competent to file an appeal. अब एक और चीज़ जान लीजिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि अ डिसीजन कैन नॉट बी सेड टू एडवर्सली अफेक्ट अ पर्सन अनलेस इट ऑपरेट्स एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट हिम. ठीक है,
तो एडवर्स इफेक्ट डिटरमाइन करने के लिए ये भी बोला जाता है कि क्या जो डिक्री का इफेक्ट है क्या वो रेस जुडिकाटा क्रिएट करता है ऐसे पर्सन के खिलाफ. अगर आंसर है हाँ, देन द आंसर इज दैट इट एडवर्सली अफेक्ट्स हिम. और एंड इफ द आंसर इज नो, दैट इट डज नॉट क्रिएट द बार ऑफ रेस जुडिकाटा, देन इट कैन बी सेड दैट इट डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट हिम. बट ये एकदम पूरी तरीके से कट एंड राइट भी नहीं है. फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं. तो न्यूमरस टेस्ट होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि पेक्यूनरी इंटरेस्ट या कोई और इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं. दूसरा टेस्ट ये भी है कि क्या रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगा डिसीजन इन द सूट या नहीं, ठीक है. तो दीज आर दी सम ऑफ द टेस्ट दैट इज डन बाय कोर्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज अग्रीड बाय द जजमेंट और नॉट. क्योंकि पर्सन को अग्रीड होना होगा डिक्री फाइल करने, सॉरी अपील फाइल करने के लिए, ठीक है. द पर्सन शुड बी agreed by the judgment of the lower court or the decree of the lower court and file an appeal. ठीक है, he should be aggrieved, only then he will be competent to file an appeal. अब a person is aggrieved or not is a question of fact. ठीक है, ये question of law नहीं है, question of fact है. A person is aggrieved or not or is adversely affected by a decree or not is a question of fact that will be determined in accordance with fact and circumstances of each case, and no rule of universal application can be laid down in that behalf. ठीक है. अब सवाल उठता है कि क्या को प्लेंटिफ आपस में अपील फाइल कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं. क्या वन प्लेंटिफ दूसरे प्लेंटिफ के खिलाफ अपील फाइल कर सकता है एक ही सूट में, या क्या वन डिफेंडेंट कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट और नॉट. ठीक है, मतलब क्या अपील इज अलाउड बिटवीन को-प्लेंटिव्स एंड को-डिफेंडेंट्स इंटर से. इसका आंसर ये होगा कि क्या उनके इंटरेस्ट ऐसे हैं विच अमाउंट टू अ डिस्प्यूट बिटवीन देम. क्या डिस्प्यूट ऐसा है जो को-प्लेंटिव के भी बीच में है, क्या डिस्प्यूट ऐसा है जो को-डिफेंडेंट्स के भी बीच में है. इफ द आंसर इज येस कि डिस्प्यूट ऐसा है जो को प्लेंटिव्स के भी बीच में है और को डिफेंडेंट्स के भी बीच में है, देन बोथ आर कॉम्पिटेंट टू फाइल अगेंस्ट वन अनदर. को डिफेंडेंट को एक दूसरे को डिफेंडेंट के खिलाफ भी अपील फाइल कर सकता है और को प्लेंटिव एक दूसरे को प्लेंटिव के खिलाफ भी अपील फाइल कर सकता है. ठीक है, तो इसके लिए प्राइमरी क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एज अ जज is whether the matter in controversy in the suit forms the subject matter of dispute between the plaintiffs inter se. If the answer is yes, it does, then an appeal can be filed by one plaintiff against another plaintiff. ठीक है. Similarly, on similar consideration, the same principle would apply in case of co-defendants, where one defendant wants to file an appeal against another defendant. ठीक है. अब हम जरा आ जाते हैं सेक्शन 96 पे, ठीक है, which talks about appeals from original decrees. It says, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court. मतलब आपके पास एक राइट टू अपील तो दिया ही गया है, ठीक है, you have one right of appeal. Then subsection 2 states an appeal may lie from an original decree passed ex parte, मतलब ex parte decree से भी आप अपील कर सकते हैं. Third is no appeal shall lie from a decree passed by the court with consent of the parties. अब इसको मैं explain कर चुका हूँ ऑर्डर 23 के कंटेक्स्ट में, कॉम्प्रोमाइज सूट्स के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, so I will not go into it again. And subsection 4 says that no appeal shall lie except on a question of law from a decree in any suit of the nature cognizable by court of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि स्मॉल कॉज कोर्ट जो हैं उनके डिसीजन से अपील तब तक लाए नहीं करेगी जब तक जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है उसका अमाउंट या वैल्यू 10,000 रुपए के ऊपर नहीं जाता. अगर 10,000 रुपए के अंदर है देन नो अपील लाइज. Section 97 talks about appeal from final decree where no appeal from preliminary decree. It says where any party agreed by a preliminary decree passed after commencement of this court does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree. तो ये सेक्शन आपसे क्या कह रहा है?
ये नहीं कह रहा है आपसे कि अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के लिए अपील नहीं की, के खिलाफ अपील नहीं की, तो आप फाइनल डिग्री के खिलाफ भी अपील नहीं कर सकते. दिस इज नॉट व्हाट दिस सेक्शन इज सेइंग. ये कह रहा है कि अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की, तो जो फाइनल डिग्री के खिलाफ जब आप अपील करेंगे, तो उसमें आप प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस चैलेंज नहीं कर सकते. ये कह रहा है. ठीक है. देखिए, एज अ मैटर ऑफ नॉर्म अपील लाइज अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिग्री ऑल्सो एंड फाइनल डिग्री ऑल्सो. ठीक है. प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है? प्रिलिमिनरी डिग्री इज जस्ट अ मैकेनिज्म which decides the right and liabilities of the parties. Final decree क्या करती है? Final decree is just for the implementation of preliminary decree. जैसे कि आप पार्टीशन सूट का एग्जांपल ले लीजिए कि उसमें एक प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी पहले, जहाँ पे ये देखा जाएगा कि कौन कौन को पार्टनर है, किसका कितना शेयर है, वो इज इंटाइटल टू व्हाट. तो राइट्स वहाँ पे डिसाइड हो गए. अब फाइनल डिग्री जब आएगी, देन इट विल डू अ डिफैक्टो पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे इसको बंटवारा करेंगे, ये प्रॉपर्टी इसको पार्टनर के पास जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे को पार्टनर के पास जाएगी. ठीक है. तो फाइनल डिग्री क्या कर रही है? वो प्रिलिमिनरी डिग्री में जो राइट्स डिटरमाइन हुए थे उन्हीं को बस एग्जीक्यूट कर रही है. ठीक है. In other words, it is just implementing what has been laid down in the preliminary decree. जब rights laid down किए जाएंगे तभी तो उस हिसाब से विभाजन होगा पार्टीशन सूट में. तो सेक्शन 97 वही कह रहा है कि जब आप फाइनल डिग्री के खिलाफ अपील करेंगे और आप प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील कर सकते थे, तो यू वोंट बी allowed to challenge or dispute the correctness of preliminary decree if you never filed the appeal against the preliminary decree that was passed by the lower court. ठीक है. अगर आपने फाइनल डिग्री के खिलाफ अपील की है, जिस केस में प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास हुई है, और आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की थी, then when you are preferring an appeal against the final decree, you cannot dispute the correctness of the preliminary decree. अच्छा, प्रैक्टिकली इफेक्ट क्या होता अगर आप प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील कर देते? अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील कर दी, जैसे कि पार्टीशन सूट में जहाँ पे राइट्स डिसाइड हुए थे को पार्टनर के कि वो इज एंटाइटल्ड टू व्हाट शेयर, और आपने अपील फाइल कर दी प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ, और बाद में लोअर कोर्ट ने फाइनल डिग्री भी पास की थी विच इम्प्लीमेंटेड वट एवर वॉज लेट डाउन इन द प्रिलिमिनरी डिग्री. तो जब आप प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ अपील करेंगे और सुपीरियर कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री सेट असाइड कर दी, तो फाइनल डिग्री विल ऑटोमेटिकली बी सेट असाइड. इट विल फॉल टू द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि फाइनल डिग्री वाज इंप्लीमेंटिंग व्हाट वाज लेट डाउन इन द प्रिलिमिनरी डिग्री. जब प्रिलिमिनरी डिग्री ही हट गई तो फाइनल डिग्री क्या इंप्लीमेंट करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती. राइट. सो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि 97 का स्कोप का ध्यान रखिए कि 97 क्या कह रहा है कि वेयर एनी पार्टी इज अग्रीड बाय प्रिलिमिनरी डिग्री passed after commencement of this code and does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from final decree. तो ये नहीं कह रहा है कि आप फाइनल डिग्री के खिलाफ अपील नहीं कर सकते, जैसा कि लोग अक्सर बना देते हैं. ये कह रहा है कि आप प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस डिस्प्यूट नहीं कर सकते. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 97 का? ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 97 इज to make it clear that any party who is agreed by preliminary decree must appeal against that decree, and if he fails to appeal against such decree, he cannot challenge its correctness. ठीक है. तो प्रिलिमिनरी डिग्री को लेके अपील करने के लिए लेजिस्लेचर कह रहा है कि भाई आप अपील फाइल कर दीजिएगा प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ. नहीं की ना तो उसकी करेक्टनेस नहीं डिस्प्यूट कर पाएंगे. अब सेक्शन 98 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेक्शन 99 पे आ जाते हैं. It says no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits or jurisdiction. ये appellate court के लिए ये चीज enact की गई है. It says no decree shall be reversed or substantially varied, nor shall the case be remanded in an appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or cause of action or any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit not affecting the merits of the case or jurisdiction of the court. तो मतलब जब तक लोअर कोर्ट की जो डिक्री है वो मेरिट पे है और उसके जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, तो अपीलेट कोर्ट जो है उस डिक्री को रिवर्स या सब्सटेंशियली वेरी नहीं करेगा या रिमांड भी नहीं करेगा, सिर्फ इस बात पे कि देयर हैज़ बीन अ नॉन जॉइंडर
or misjoinder of the parties or cause of action, or there has been an error, defect or irregularity in any proceeding, जो merit को नहीं affect करती, ना कोर्ट के jurisdiction को affect करती है. Proviso क्या कहता है? Proviso, as you can expect, यही कहता है कि it will not apply to non-joinder of a necessary party, क्योंकि पता है आपको कि necessary party की absence में decree नहीं pass हो सकती. ठीक है? In fact, there are some decisions to the effect जो कहते हैं कि अगर नेसेसरी पार्टी को रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया है, दैट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट. तो प्रोवाइजो का स्कोप ध्यान रखिएगा कि जो नॉन जॉइंडर की बात है वो नेसेसरी पार्टी पे नहीं अप्लाई करती. अगर नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया गया तो अपीलेट कोर्ट विल सेट असाइड द डिक्री. ठीक है? क्या अपील किसी फाइंडिंग के खिलाफ हो सकती है? if a finding is recorded by the court of law and that finding does not amount to a decree or order, then no appeal can lie against it. ठीक है? mere finding के खिलाफ डिक्री नहीं, mere finding के खिलाफ अपील नहीं लाई कर सकती. लेकिन आफ्टर द 1976 अमेंडमेंट ऑर्डर 41 के रूल 22 में जो रिस्पोंडेंट है वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है इवन दो द ओरिजिनल डिक्री वाज एंटायरली इन हिज फेवर, क्योंकि वो तब फाइंडिंग्स के खिलाफ वो करता है, क्या कहते हैं, अपील फाइल करता है. क्रॉस ऑब्जेक्शंस पे मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा. बट बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए कि जहाँ पे प्लेंटिव ने सूट फाइल किया है और जज ने डिफेंडेंट के खिलाफ कुछ एडवर्स फाइंडिंग की है, बट अल्टीमेटली इट फाइंड्स दैट द प्लेंटिव हैज़ फेल्ड टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन और वो सूट डिसमिस कर देता है. लेकिन डिफेंडेंट जो है ही इज अग्रीड बाय दैट फाइंडिंग, राइट? ही इज अग्रीड बाय दैट फाइंडिंग. तो यूजुअली होता क्या है कि डिफेंडेंट कैन नॉट गो इन अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग इटसेल्फ. वो फाइंडिंग के खिलाफ अपील नहीं फाइल कर सकता. लेकिन अब इसी सिचुएशन में मानिए कि प्लेंटिव जिसका सूट डिसमिस हो गया वो अपील फाइल करता है. ठीक है? अब उस अपील में आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976 रूल 22 ऑफ ऑर्डर 41 empowers the defendant, जो अब रिस्पोंडेंट होगा, to actually file cross objections against the finding that was recorded against him. जो फाइंडिंग जो उसके खिलाफ रिकॉर्ड की गई थी वो अब उनको चैलेंज कर सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में क्रॉस ऑब्जेक्शन जब वो फाइल करता है उसको हम लोग क्रॉस ऑब्जेक्शंस बोलते हैं. तो क्रॉस ऑब्जेक्शन जब वो फाइल करता है तो वो डिक्री जो पास हुई है ओरिजिनली जो उसके फेवर में होगी वो तो वो सपोर्ट कर ही सकता है, बट साथ ही साथ वो ये भी कह सकता है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग उसके खिलाफ रिकॉर्ड की है वो गलत है. ठीक है? सी इमेजिन दिस, द रिस्पोंडेंट जो डिफेंडेंट था वो इस सिचुएशन में रिस्पोंडेंट बनेगा. तो रिस्पोंडेंट कैन नॉट ओनली सपोर्ट द डिक्री, he can not only support the decree but can say that the findings that were recorded against me in the trial court are not correct. ये वो पॉइंट ले सकता है. ये है क्रॉस ऑब्जेक्शन का राइट. ठीक है? ये पहले नहीं अवेलेबल था डिफेंडेंट के पास. पहले ये था कि भाई अगर डिक्री आपके फेवर में तो आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं, यू कांट. अब इस पे सबसे लीडिंग केस है आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वर्सेस बी सुब्बा रेड्डी, डिसाइडेड ऑन 26 अप्रैल 1999. Here, the Supreme Court said that an appeal is a substantive right, it's a creation of statute, and right to appeal does not exist unless it is specifically conferred. Secondly, it said that the cross objection is like an appeal, it has all the trappings of an appeal, it is filed in the form of the memorandum and the provisions of Rule 1 of Order 41 of CPC so far as they relate to the form and contents of the memorandum of appeal apply to cross objections as well. Third is court fees payable on cross objection like that on the memorandum of appeal, and provisions relating to appeals by indigent person also apply to cross objections. Fourthly, it said that everywhere the appeal is withdrawn or dismissed for default, cross objections may nevertheless be heard and determined. अगर appeal withdraw या dismiss कर दी गई है for default, even then hearing can continue on the cross objections. Fifth is respondent, even though he has not appealed, may support the decree on any other ground, but if it wants to modify it, he has to file cross objections to the decree, which objections he could have taken earlier by filing an appeal. Time for filing objection, which is in the nature of appeal, is extended by 1 month
after service of notice on him of the day fixed for hearing the appeal. This time could also be extended by court like in appeal. Sixth and last principle is that cross objection is nothing but an appeal, a cross appeal at that. It may be that the respondent wanted to give quietus to the whole litigation by his accepting the judgment and decree or order, even it was partly against his interest. When, however, the other party challenged the same by filing an appeal, statute gave the respondent a second chance to file an appeal by way of cross objection if he still felt aggrieved by the judgment and decree or order. ये बहुत लोकस क्लासिकस है, आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में. क्रॉस ऑब्जेक्शंस पे सवाल आते हैं. देखिए अपील को लेके आपको जो भी सवाल आ सकते हैं इन रेलम ऑफ केस लॉ, वो एक इससे आ सकते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन से. इसमें आपको फिर ये केस मेंशन करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया. और दूसरा वो आपके अपील को लेके जनरल प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं जो गरिकापति वीरिया वर्सेस एन सुबैया चौधरी में ले डाउन हुए थे. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. उसमें फिर आपको अपील के सब्सटैंशियल प्रोविजंस मेंशन करने पड़ेंगे. और अगर अपील का प्रोसीजर पूछा गया है तो आप प्रोसीजर भी बताइए, ठीक है. लेकिन अगर प्रोसीजर नहीं पूछा गया है, सिर्फ जनरल ओवरव्यू पूछा गया है, तो आपको बेसिकली बताना है अपील क्या है, कहाँ है, कैसे फाइल होती है. बस बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना और उसके जनरल प्रिंसिपल्स बता देने. फिर मार्क्स के हिसाब से भी डिसाइड होगा कि आपको कितना बताना है और कितना नहीं बताना. कम मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको थोड़ा डिटेल में आंसर करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं कि क्या अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ डेड पर्सन. नो, दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ स्टिल बॉर्न अपील. वो स्टिल बॉर्न अपील होगा. तो यू नीड टू सब्सटीट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट पर्सन. आप डेड पर्सन को सू भी नहीं कर सकते और ना आप अपील पे जा सकते हैं. वो स्टिल बॉर्न अपील होगी. और अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे नहीं लाए विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देन क्या होगा, योर अपील वुड बी रिजेक्टेड. ठीक है. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाना होगा. ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे यू हैव फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट अ डेड पर्सन, तो वहाँ पे अपील को स्टिल बॉर्न कहा जाता है. कि मतलब अपील इज नॉट प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड, क्योंकि डेड पर्सन के खिलाफ अपील कैसे हो सकती है. तो यहाँ पे आपको डेड पर्सन जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पे लाना होगा. अगर आप नहीं लाए विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और कॉन्डोनेशन के लिए भी नहीं अप्लाई किया, तो क्या होगा, अपील डिसमिस हो जाएगी. अब ऑर्डर 41 पे आ जाते हैं. अब जो रूल 1 है वो मेमोरेंडम की बात करता है. वो कहता है कि आपको जो अपील फाइल करनी है वो एक मेमोरेंडम के फॉर्म पे करेंगे और क्या कहते हैं, इट शैल बी साइंड बाय द अपेलेंट एंड द प्लीडर. और फिर इसके साथ कॉपी ऑफ जजमेंट भी होंगे. ठीक है. फिर उसमें कंटेंट भी बताना होता है कि क्या आपके ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन है और आपका क्या प्राइमरी ग्रीवेंस है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट या डिक्री से क्या आपका प्राइमरी ग्रीवेंस है. तो आपको ना कंसाइसली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेडिंग बताना होता है. रूल 2 भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता आपसे. ये कहता है कि क्या क्या ग्राउंड आप ले सकते हैं अपील में. वो बेसिकली आपसे इतनी बात करता है कि अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में कोई ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं लिया है तो उस ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन पे सुनवाई नहीं होगी आपकी. लेकिन वो एक सेविंग क्लॉज बना देता है उसके लिए कि कोर्ट चाहे तो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन सेट फोर्थ के बियॉन्ड भी जा सकता है. इट मीन्स दैट द appellate court is not just bound by any ground of objection that you have taken. In deciding the appeal, it can even go beyond that. प्रोवाइजो रूल 2 का सबसे इतनी सी बात करता है कि ऑपोजिट पार्टी को एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग देनी चाहिए. ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं. रूल 3 पे आ जाते हैं. इट टॉक्स अबाउट रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम. ये आपसे कहता है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील आपने वैसे ड्रॉ नहीं किया जैसे कि बताया हुआ है तो क्या कहते हैं, इट विल बी रिजेक्टेड या इट विल बी रिटर्न्ड. प्रॉपर कोर्स ये होता है कि इट इज़ रिटर्न. रिजेक्ट सीधे नहीं होता, रिटर्न कर दिया जाता है. और जब रिटर्न कर दिया गया है, आप फिर फाइल कर रहे हैं और बार बार आप डिफेक्टिव मेमोरेंडम फाइल कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कोर्ट की आगे रिजेक्ट कर दे. तो ये जो रूल्स हैं प्रोसीजरल इन नेचर हैं. ये आपको बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है. तो जब मेमोरेंडम रिजेक्ट होता है तो रीजंस रिकॉर्ड करने हैं. और जब मेमोरेंडम ऑफ अपील अमेंड होता है तो जज या उसका कोई भी जो ऑफिसर कोर्ट को होगा, who is appointed in that behalf, he shall sign or initial the amendment. Rule 3A talks about condonation of delay. जब आपने अपील प्रेफर की है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड,
ठीक है, यूजुअली 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड होता है फॉर प्रेफरिंग एन अपील। 30 दिन के अंदर अगर आपने अपील नहीं प्रेफर की तो लॉ ऑफ लिमिटेशन विल बार योर राइट टू अपील। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए जो लिमिटेशन के सेक्शन 5 में फाइल की जाती है एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या सफिशिएंट कॉज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जिसकी वजह से कि जो आपने जो अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड फाइल की है उसको क्यों एडमिट कर लेना चाहिए। तो अगर आपके सफिशिएंट ग्राउंड से या सफिशिएंट कॉज से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डिले कॉन्डोन कर देगा। नहीं सेटिस्फाई हो जाता है, नहीं सेटिस्फाई होता है, देन ही विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। रूल 3A का सब रूल 3 आपसे इतनी सी बात करेगा कि कोर्ट स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं देगा जब तक द अपीलेट कोर्ट डिसाइड्स टू हेयर द अपील। जब तक उसने ये नहीं डिसाइड किया कि विल इट हेयर द अपील और नॉट, तब तक इट विल नॉट गिव द ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। सो याद रखिएगा, merely filing an application for condonation of delay is not a ground to get the execution stayed। ठीक है, रूल 4 आपसे क्या कहता है? रूल 4 भी आपसे छोटी सी बात करेगा कि जब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं एक ही सूट में और डिक्री इज अपील्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स विच आर कॉमन टू ऑल ऑफ द प्लेंटिव्स और ऑल ऑफ द डिफेंडेंट्स, तो कोई भी प्लेंटिफ, कोई भी एक प्लेंटिफ या कोई भी एक डिफेंडेंट अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द वोल डिक्री। और अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? अपीलेट कोर्ट में रिवर्स और वैरी द डिक्री इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में भी। कि मतलब अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं और डिक्री इज अपील फ्रॉम एंड जो डिक्री जो अपील फाइल की गई है इट प्रोसीड्स ऑन ग्राउंड कॉमन टू ऑल। ठीक है, एक ही ग्राउंड सबके लिए कॉमन है, एक ही पॉइंट है जो सारे लोगों के लिए कॉमन है। तो कोई भी एक प्लेंटिफ या कोई भी एक डिफेंडेंट में अपील फ्रॉम द वोल ऑफ द डिक्री और अपीलेट कोर्ट डिक्री को रिवर्स या वैरी कर सकता है इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्योंकि जनरल रूल ये होता है कि अपील का बेनिफिट उसी को मिलता है जिसने अपील फाइल की है। लेकिन ये रूल कहता है कि जब ग्राउंड्स सारे लोगों के लिए कॉमन है, सारे लोगों के लिए कॉमन है और उनमें से कोई एक अपील फाइल कर देता है, तो जब अपीलेट कोर्ट डिक्री रिवर्स या वैरी करेगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। ठीक है, ये तभी अप्लाई होता है व्हेन ग्राउंड्स आर कॉमन टू ऑल। इफ द ग्राउंड्स आर नॉट कॉमन टू ऑल, फिर आपका वही वाला रूल लगेगा कि जिसने अपील की है उसी को बेनिफिट ग्रांट होगा। अब हम रूल 5 पे आ जाते हैं। रूल 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल 5 टेल्स यू अबाउट स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब एसेंस में ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला प्रिंसिपल जो ये आपको बताएगा रूल 5 कि अपील फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोसीडिंग्स फॉर एग्जीक्यूशन स्टे हो जाएंगी। ठीक है, ना प्रोसीडिंग स्टे होती हैं ना एग्जीक्यूशन स्टे होता है, मेयरली बिकॉज एन अपील हैज बीन फाइल्ड। लेकिन अपीलेट कोर्ट चाहे तो सफिशिएंट कॉज के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री को स्टे कर सकता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन आपको एक छोटी सी बात करता है जो आपको सिर्फ रीडिंग से ही समझ में आ जाएगा। इट सेज एन ऑर्डर बाय एन अपीलेट कोर्ट फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, but an affidavit sworn by the appellant based on his personal knowledge stating that an order for stay of execution of the decree has been made by the appellate court shall, pending the receipt from the appellate court of the order of the order for the stay of execution or any other order to the contrary, be acted upon by the court of first instance। basically ये कह रहा है आपसे कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वहां पे ये जो स्टे का ऑर्डर है कब से ऑपरेटिव होगा? जब से उसे ऑर्डर की एक कॉपी मिलती है। ठीक है, बट जो भी अपेलेंट है वो एफिडेविट फाइल करने के बाद ये बता सकता है कि अपनी पर्सनल नॉलेज पे कि अपीलेट कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर पास कर दिया गया है, थोड़े टाइम रुक जाइए, आप स्टे का ऑर्डर पास कर दीजिए, आपको जो ऑर्डर की कॉपी है बस कुछ ही टाइम में मिल जाएगी। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है जहाँ पे अगर डिक्री एग्जीक्यूट हो गई तो हो सकता है अपेलेंट का कोई सब्सटेंशियल लॉस हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अपेलेंट क्या करता है कि वो खुद ही चला जाता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास और सीधे वो अपने एफिडेविट फाइल करने के बाद बताता है कि अपीलेट कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दे दिया, कुछ टाइम में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, सो वेट फॉर अ वाइल। तो
तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या कर सकता है? इट कैन ऑर्डर द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, पेंडिंग द रिसीट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द अपेलेट कोर्ट. अब सब रूल 2 आपको बताता है कि जब एक एप्लीकेशन दी जाती है फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन अपीलेबल डिक्री बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर अपीलिंग देयर ऑफ, द कोर्ट विच पास द डिक्री मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन ऑर्डर द एग्जीक्यूशन बी स्टेड. तो ये एप्लीकेशन सब रूल 2 में किधर जाएगी? ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास जाएगी. ये एप्लीकेशन अपेलेट कोर्ट के पास नहीं जाती, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास जाती है फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन. अब सब रूल 3 ऑफ रूल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको बताता है क्या चीज़ों से कंप्लायंस होना चाहिए जब स्टे ऑर्डर दिया जाएगा. इट सेज नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 unless the court making it is satisfied that a that substantial loss may result to the plaintiff to the party applying for stay of execution unless the order is made. Substantial loss is the first criteria. Second is the application has been made without unreasonable delay. ठीक है, second is unreasonable delay. The application has been made without unreasonable delay. That is the second thing. आप इसको दूसरे शब्दों में कह देते हैं prompt filing of the application. Third is the security has been given by the applicant for due performance of such decree or order as may be ultimately be binding upon him. ये security देना बहुत ज़रूरी है. It is very 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 important. ठीक है, तो ये mandatory बातें हैं, तो इसको मार्क कर लीजिएगा. It is mandatory in nature. अब रूल 4 और सब रूल 4 कहता है of rule 5 that subject to the provisions of sub rule 3 the court may make an ex parte order for stay of execution pending the hearing of application. Sub rule 5 कहता है notwithstanding anything contained in the foregoing sub rules where the appellant fails to make the deposit or furnish the security specified in sub rule 3 of rule 1, the court shall not make an order staying the execution of decree. मतलब बेसिकली ये आपको यही बता रहा है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन तब तक नहीं हो सकता अनलेस यू कंप्लाई विद सब रूल 3. ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रूल 6 पे आते हैं. रूल 6 भी आपसे छोटी सी बात करता है. इट टॉक्स अबाउट द रेस्टिट्यूशन सिक्योरिटी. ये रेस्टिट्यूशन सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा बात करता है. ये बोलता है कि जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का ऑर्डर दिया जा चुका है और डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है और उस डिक्री के खिलाफ अपील भी पेंडिंग है, तो कोर्ट विच पास द डिक्री ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द अपेलेंट सिक्योरिटी ले सकता है जजमेंट क्रेडिटर से फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. और अपेलेट कोर्ट भी ऐसे ऑर्डर को दे सकता है ट्रायल कोर्ट को, सॉरी नॉट ट्रायल कोर्ट, ऐसा ऑर्डर दे सकता है टू द कोर्ट विच पास द डिक्री. हालांकि वो होगा ट्रायल कोर्ट ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजिकली प्योर रह रहा हूँ. तो अपेलेट कोर्ट ये कह सकता है कि आप जजमेंट क्रेडिटर से वो सिक्योरिटी लीजिए जस्ट इन केस अगर रेस्टिट्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑर्डर हो. ठीक है, तो आपको 2 लोग मिल जाते हैं रूल 6 में. कौन कौन मिलता है? अपेलेट कोर्ट कैन डायरेक्ट द कोर्ट विच पास द डिक्री to take such security, or court which passed the decree on sufficient cause being shown can also direct taking of such security. Security का purpose क्या रहेगा? Restitution. ठीक है, the security is for the purpose of restitution. अब हम लोग सीधे रूल 11 और 11A पे आ जाते हैं. इनको summary dismissal भी कहा जाता है. Rule 11 says that the appellate court may, after fixing a date for hearing of the appellant or his pleader and hearing him accordingly if he appears on the day, may dismiss the appeal. तो उसी दिन जिस दिन अपील फाइल हुई है, हियरिंग के बाद अपील को डिसमिस कर सकता है. ठीक है, अपील फाइल हुई, आज आपकी हियरिंग हुई, आज ये डिसमिस हो गया. या अपील आज फाइल हुई, एक हफ्ते बाद आपकी हियरिंग की डेट रखी, उसी दिन डिसमिस कर दिया. ये हो सकता है. बेसिकली क्या कह रहा है रूल आपसे कि अपेलेट कोर्ट आफ्टर फिक्सिंग अ डे फॉर हियरिंग द अपेलेंट और हिज प्लीडर एंड आफ्टर हियरिंग हिम if he appears may dismiss the appeal. Sub rule 2 says if on day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the court may order that the appeal be dismissed. यहाँ पे dismissal is for default. Default of what? Default of appearance. Sub rule 3 reads that the dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court
फ्रॉम whose decree the appeal is preferred. ऐसे डिसमिसल को उस कोर्ट को नोटिफाई किया जाएगा जिससे अपील प्रेफर हो रही है, ठीक है. तो मान लीजिए अगर सिविल या सीनियर डिवीजन की डिक्री के खिलाफ मैटर गया था, लेट अस सपोज डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो डिस्ट्रिक्ट जज आफ्टर डिसमिसल अंडर दिस रूल ही विल जस्ट से कि ओके दिस अपील हैज बीन डिसमिस्ड, तो ये नोटिफाई कर देगा लोअर कोर्ट को. सब रूल 4 says where an appellate court which is not a high court dismisses an appeal under sub rule 1, it shall deliver a judgment recording in brief its ground for doing so and a decree shall be drawn up in accordance with the judgment. ठीक. रूल 11 ये क्या कहता है? रूल 11 ये आपको टाइम फिक्स करता है और कहता है कि एवरी अपील शैल बी हर्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल और उसको 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए. अब रूल 14 पे आ जाते हैं. इट टॉक्स अबाउट पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस फॉर हियरिंग ऑफ अपील. मान लीजिए अपीलेट कोर्ट ने कोई डे फिक्स कर दी है हियरिंग की, ठीक है, तो क्या नोटिस किसको किसको दी जाएगी? रिस्पोंडेंट को दी जाएगी, ठीक है. लेकिन सब रूल 1 क्या बात करता है? सब रूल 1 ये बात करता है ऑफ रूल 14 कि जो नोटिस है सबसे पहले अपीलेट कोर्ट के कोर्ट हाउस में फिक्स की जाएगी. वैसी ही नोटिस अपीलेट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को देगा या कोर्ट फ्रॉम whose decree the appeal is preferred. प्रॉपरली टर्म ये होगा कोर्ट फ्रॉम whose decree the appeal is preferred. Or court of first instance shall cause the notice to be forwarded to the respondent or his pleader as the case may be. कैसे सर्व की जाएगी? वैसे ही जैसे समन्स डिलीवर किए जाते हैं. अब सब रूल 2 क्या कहता है कि अपीलेट कोर्ट खुद से ही नोटिस डायरेक्टली दे सकता है रिस्पोंडेंट और इट्स प्लीडर को, ठीक है. सब रूल 3 says notice to be served on respondent shall be accompanied by copy of memorandum of appeal. बेसिक चीज है. अब सब रूल 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सब रूल 4 कहता है कि notwithstanding anything to the contrary contained in sub rule 1, it shall not be necessary to serve notice of any proceeding incidental to the appeal on any respondent other than the person impleaded for the first time in appellate court unless he has appeared and filed an address for service in the court of first instance और has appeared in appeal. बेसिकली कह रहा है कि किसी भी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग जो अपील से रिलेट करती है उसको लेके नोटिस देने की जरूरत नहीं है सिवाय उस पर्सन को वो हैज बीन इम्प्लीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपीलेट कोर्ट, ठीक है. वो हैज बीन इम्प्लीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपीलेट कोर्ट. उसको छोड़ के इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए जो अपील में ऑकर हो सकती हैं उसको लेके नोटिस देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी. और जो पर्सन हु हैज अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम उसको लेके भाई कब एक्सेप्शन होंगे? जब उसको भी कब नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी इंसिडेंटल नोटिस, तब जब ही हैज अपीयर्ड एंड फाइल्ड एन एड्रेस फॉर सर्विस इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और हैज अपीयर्ड इन अपील. रूल 5 बेसिकली ये कहता है कि नॉन सर्विंग ऑफ नोटिस या एनी ऑफ द सिचुएशंस which relates to incidental proceedings of an appeal और उसमें अगर नोटिस नहीं सर्व हुई है ये सारी चीज़ें बार नहीं करती हैं रिस्पोंडेंट को टू डिफेंड द डिक्री, ठीक है. वो रिस्पोंडेंट को बार नहीं करेंगी फ्रॉम डिफेंडिंग द डिक्री. अब है प्रोसीजर फॉर हियरिंग. ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक हैं बेयर एक्ट लेवल पे, तो इस पर एलैबोरेशन भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये बेसिकली सिंगल रीडिंग से खुद ही कॉमन सेंस की बात हो जानी चाहिए. रूल 16 कहता है राइट टू बिगिन, ठीक है. अपेलेंट को सबसे पहले सुना जाएगा और अगर अपेलेंट के सुनने के बाद कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील एट वंस तो रिस्पोंडेंट को सुना जाएगा, ठीक है. और उसके बाद द अपेलेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई. रूल 17 क्या कहता है? डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपेलेंट्स डिफॉल्ट. जब कोई भी दिन फिक्स हुआ है या किसी और दिन जहाँ पे हियरिंग एडजर्न हो गई है और जिस दिन पे बुलाया जाना था अपेलेंट को उस दिन अपेलेंट भाई साहब नहीं आते तो क्या होगा? तो ये होगा कि अपील विल बी dismissed for default. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या कहा गया है. एक्सप्लेनेशन कहती है कि nothing in this sub rule shall be construed as empowering the court to dismiss the appeal on merits. Sub rule 2 कहता है hearing appeal ex parte. It says where the appellant appears and the respondent does not appear, तो appeal shall be heard ex parte. ये वैसा ही आपको लग रहा होगा जैसे कि ऑर्डर 9 में चल रहा था. इनफैक्ट ये है भी वैसा ही, लेकिन ये अपीलेट स्टेज में चल रहा है ऑर्डर 41 में.
अब रूल 19 में रीएडमिशन की बात की गई। अब यहाँ पे सफिशिएंट कॉज अगर आप दिखा देंगे तो अपील रीएडमिट हो सकती है। ये कहता है कि जब अपील डिसमिस हो गई है रूल 11 सब रूल 2 में या रूल 17 में, तो आप सफिशिएंट कॉज दिखा के, इफ यू आर द अपेलेंट, आप सफिशिएंट कॉज दिखा के उसको अपील को रीएडमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अब सीधे रूल 21 पे आ जाइए। अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है? अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि हियरिंग एक्स पार्टे चल सकती है अगर रिस्पोंडेंट नहीं आया। तो रूल 21 उस सिचुएशन की बात करता है जब अपील एक्स पार्टे हर्ड हुई है और जजमेंट प्रोनाउंस हो गया रिस्पोंडेंट के खिलाफ, तो वो भी अपेलेट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है टू री हियर द अपील। और फिर अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, अपेलेट कोर्ट को, कि नोटिस वाज नॉट ड्यूली सर्व टू हिम और ही वाज प्रिवेंटेड बाय अ sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, then the court shall re-hear the appeal. Again, बहुत stark similarities हैं ऑर्डर 9 में और इसमें। अब जैसे रूल 21 आपने पढ़ा ऑर्डर 41 का, इट इज़ वेरी सिमिलर टू ऑर्डर 9 रूल 13, है कि नहीं? अब रूल 22 पे आ जाते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शंस को लेके केस लॉ मैं आपको बता चुका हूँ शुरुआत में, तो बेसिकली रीडिंग ही करनी बाकी रह गई है इसकी। Rule 22 says, upon hearing, the respondent may object to decree as if he had preferred a separate appeal. It says, any respondent, though he may not have appealed from any part of the decree, may not only support the decree, but may also state that the finding against him in court below, in respect of any issue, ought to have been in his favor, and may also take cross objections to the decree in which he could have taken by the way of appeal, provided he has filed such objections in the appellate court within 1 month from the date of service on him or his pleader the notice of the day fixed for hearing the appeal, or within such further time as the appellate court may see fit to allow. अब एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? वो कहती है कि a respondent agreed by finding of the court in judgment on which the decree appealed against is based may under this rule file cross objection in respect of the decree insofar as it is based on that finding, notwithstanding that by reason of the decision of the court or any other finding which is sufficient for the decision of the suit, the decree is in wholly or in part in favor of the respondent. Basically rule 22 आपसे क्या कह रहा है? रूल 22 रिस्पोंडेंट को अलाउ करता है टू नॉट ओनली डिफेंड द डिक्री बट टू ऑल्सो address the finding which was decided against him by the court of first instance or the court which passed the decree. ठीक है, कि मतलब रिस्पोंडेंट ये कह रहा है कि देखिए जो लोअर कोर्ट ने हालांकि मेरे फेवर में डिक्री दी है, लेकिन उसने जो फाइंडिंग जो क्रिएट की है उनमें से मान लीजिए 4 फाइंडिंग है, 4 में से एक फाइंडिंग इनके खिलाफ है, रिस्पोंडेंट के खिलाफ है, तो रिस्पोंडेंट क्रॉस ऑब्जेक्शंस के थ्रू क्या कर सकता है? उस फाइंडिंग को भी चैलेंज कर सकता है. सो ही कैन नॉट ओनली डिफेंड द डिक्री बट ऑल्सो अटैक द फाइंडिंग विच ही बिलीव्स शुड हैव बीन इन हिज फेवर. अब इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है ये कितने टाइम के अंदर फाइल हो जाने चाहिए. तो 1 मंथ का पीरियड है फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन हिम और हिज प्लीडर एज द केस में बी, और विद इन सच फर्दर टाइम एज द अपीलेट कोर्ट मे सी फिट टू अलाउ. अब ये जो प्रोविजन है ये परमिसिव प्रोविजन है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है. अगर रिस्पोंडेंट नहीं चाहता क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना तो वो नहीं करेगा. ठीक है. अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ कि यूजुअली if a suit has been partly decided in the favor of plaintiff and partly decided in the favor of defendant, तो agreed parties क्या क्या कर सकती हैं? देखिए, it can file the appeal against the opposite party and may adopt the following 3 courses. ठीक है. First is he may prefer an appeal from the part of the decree which is against him. पार्टली डिसाइड हुआ ना, पार्टली इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, पार्टली इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट. तो भाई जो पार्ट उनके अगेंस्ट है उस पार्ट के खिलाफ वो अपील फाइल कर सकते हैं. ठीक है. Thus, there may be 2 appeals against the same decree, one by plaintiff and other by defendant. These things are known as cross appeal. This situation, इस situation में cross appeal हो रही है. ठीक है. Both of these appeals will be disposed of together. Second course available is that he may not file an appeal against the part of the decree passed against him, but may object against that part. Such objection will be called cross objection. Cross objection कहाँ हो रहा है? Rule 22 में. Third situation is
without filing a cross appeal or cross objection, he may support the decree on first on the grounds decided in his favor by the trial court, or second even on the grounds decided against him. ठीक है, तो 3 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. एक होता है क्रॉस अपील, कि भाई मान लीजिए मी एंड यू आर इन अ कोर्स ऑफ लिटिगेशन, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है. डिक्री जो आती है पार्टली मेरे फेवर में, पार्टली आपके फेवर में. ठीक है, मतलब अगर पार्टली मेरे फेवर में तो इसका मतलब ये भी है कि पार्टली मेरे खिलाफ भी हुई. वैसे ही अगर पार्टली आपके फेवर में तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टली वो आपके भी खिलाफ हुई. तो जो पार्ट आपके खिलाफ है डिक्री का, उसको लेके आप अपील फाइल करेंगे, मैं भी उस पार्ट को लेके अपील फाइल करूंगा जो मेरे खिलाफ है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस अपील्स हैं. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस अपील्स हैं. ये फर्स्ट सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि आप क्या कहते हैं, मैं अपील फाइल करता हूँ. ठीक है, आप जो हैं यू डोंट गेट बॉदर्ड with the part that has been decided against you. Let us suppose you want to give quietus to the matter. आप मैटर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अपील फाइल कर दी तो आपको अपेलेट स्टेज में आना ही पड़ेगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऐसी सिचुएशन में आपने अपील तो नहीं फाइल की है, पर आप क्रॉस ऑब्जेक्शन ले सकते हैं ऑर्डर 41 के रूल 22 में. So there you may take objection against the finding and that part of the decree that has been decided against you or that is not in your favor. अब भाई क्रॉस ऑब्जेक्शंस भी पूरी की पूरी तरीके से अपील ही होती हैं. इनका जो नेचर है, हालांकि ये प्रोसीडिंग अलग है, लेकिन दे एक्ट लाइक अपील्स. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको लीडिंग केस बताया था आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वर्सेस बी सुब्बा रेड्डी का, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्रॉस ऑब्जेक्शन इज लाइक एन अपील, इट हैज ऑल ट्रैपिंग्स ऑफ अपील, इट इज फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड प्रोविजंस ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 41 ऑफ सीपीसी अप्लाई. फॉर्म कंटेंट सेम होता है मेमोरेंडम ऑफ अपील का और क्रॉस ऑब्जेक्शन का. साथ में कोर्ट फी भी पेबल होती है और इंडिजेंट पर्सन के प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं. और जहाँ पे अगर अपील विड्रॉ भी कर ले अपेलेंट, तब भी क्रॉस ऑब्जेक्शन सुना जाएगा और प्रोसीडेड विद किया जाएगा. ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि नेचर में, रियलिटी में, क्रॉस ऑब्जेक्शन इज नथिंग बट एन अपील. इट इज अ क्रॉस अपील एट दैट. ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मेंशन करना. ऑल्सो रिमेंबर दैट राइट टू फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन इज सब्सटैंशिव इन नेचर एंड इट इज नॉट मियरली प्रोसीजरल. मियरली प्रोसीजरल नहीं है. तो बेसिकली प्रॉपरली आप ऐसे करेंगे, इट्स बोथ सब्सटैंशिव एंड प्रोसीजरल इन नेचर विद एम्फेसिस ऑन इट बीइंग सब्सटैंशिव. ठीक है. अच्छा, क्रॉस ऑब्जेक्शन आप किन के खिलाफ फाइल कर सकते हैं? तो आपको पता है क्रॉस ऑब्जेक्शन आप यूजुअली अपेलेंट के खिलाफ फाइल करते हैं. लेकिन मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा अपेलेंट है और एक से ज़्यादा रिस्पोंडेंट है, तो इंटर से आप क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. द आंसर इज येस. पर वही सिचुएशन अप्लाई करेगी जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि क्या एक को डिफेंडेंट दूसरे को डिफेंडेंट के खिलाफ अपील कर सकता है, एक को प्लेंटिफ दूसरे को प्लेंटिफ के खिलाफ अपील कर सकता है. तो वहाँ पे जो सवाल आपको पूछना है वो ये है कि क्या उनका आपस में कोई कंपीटिंग इंटरेस्ट है या नहीं. ये मेन सवाल आपको पूछना है. एक और सिचुएशन है, फॉर इंस्टेंस यू कैन टेक is that when the appeal by some of the parties cannot effectively be disposed of without opening the matter as between the respondents inter se, or in a case where the objections are common as against the appellant and co-respondent. ठीक है, तो आपस में competing interest अगर है, yes you can file it. If it is not there, then ordinarily you can't. ठीक है, ये competing interest की requirement is necessary. अब आगे बढ़ते हैं. तो रूल 22 का सब रूल 2 जो है वो फॉर्म की बात करता है. ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि सेम फॉर्म अप्लाई होता है जैसा कि अपील्स पे अप्लाई होता है. जो आपका सब रूल 4 है वहाँ पे ये बताया गया है कि अगर अपील विड्रॉ हो जाती है या डिसमिस भी हो जाती है फॉर डिफ़ॉल्ट, तब भी क्रॉस ऑब्जेक्शंस बी हर्ड एंड प्रोसीडेड विद. ठीक. 5th इज कि जो इंडिजेंट पर्सन्स के रूल्स हैं वो क्रॉस ऑब्जेक्शन को लेके अप्लाई करेंगे. ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू रीइटरेट इट अगेन. आई थिंक दिस वुड सफाइस फॉर टुडे. फ्रॉम टुमारो विल बी डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट. ठीक है, तो हमें कुछ और प्रोविजंस रेफर करने होंगे. थोड़ा रिमांड का देखेंगे, ऑर्डर 41 रूल 27, ऑर्डर 41 रूल 33, ये सारी चीज़ें देखेंगे. पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट देखेंगे कि क्या हो सकता है. तो
आई थिंक फॉर टुडे ऑल ऑफ दिस थिंग विल बी सफिशिएंट. जो जनरल प्रिंसिपल्स मैंने इन सारी चीज़ों पे बताया उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा अपील को लेके. अगर आपने इनको समझ लिया तो अपील को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, यू विल एनकाउंटर ज़ीरो प्रॉब्लम्स इन दिस कंटेक्स्ट. तो फोकस ऑन इट एंड ट्राई एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट. ना समझ में आए तो कुछ पूछ लीजिएगा.